Oh, Lord.
Good afternoon, all the participants and respected sir. I am Dibajyoti Sarkar from EC Department, Chaibasha Engineering College. Now I am introducing Mr. Shobhan Chakraborty, who has done his BTech in Electrical Engineering from GIS Group. Now currently he is working as an initiator is ST Solution Private Limited, incubated at TCG TBI IST Shibpur, and also he is Chief Marketing Officer at Microscopus Private Limited. He has many journals in reputed uh, international and national conference, and now he has in the passion for innovation initiated with making project from his school days, which turned into a profession shift as a startup. While he was pursuing BTech for supporting his education, he started full-time working from 2016. It helped him to acquire interdisciplinary knowledge and gain professional experience. From 2014 onwards, he was making projects and selling them, which led him to an IIMC incubated drone startup and the actual journey initiated. Now I am hand over the session to the respected sir, Mr. Shobhan Chakraborty. Sir, you can start your session now. Hello. Am I audible? Yes, sir. You're audible. Okay, yeah. So thanks a lot. Thanks for the introduction. So first of all, I would like to thank respected dignitaries and my dear friends who are being motivated towards the entrepreneurship journey. So may I know how many of my friends are today joining with me? Any number? Yeah, sir. How many of my friends are joining? Means how many number of students are with me in today's session? Sir, at this moment it is 85. 85, right? So I would like to take this session forward in a interactive way, in an interactive way. So I will request to all of the friends of mine who are in with me in this session that this is not a theoretical or practical class. This is not in the complete curriculum. This is just an experience which of mine which I'm going to share with you, and also along with that I'm going to share a few presentations over there. I will try my best to explain the entrepreneurship journey, how it works, and how I gain my experience. All this is my main objective. So I will request all of you to please stay with me and try and understand as much as possible. I know before I start, I know that right now it's Saturday evening, and after lunch, quite few of you might be feeling sleepy. So if that is the case, I will request you to just cheer up yourself a bit so that it can be an interactive session. So please don't make it that way. I request all of you to listen properly so that we can get some fruitful results from this session. Okay. I mean, is everyone able to hear me right now? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Yes, sir. Okay. Okay. Sure. Thanks. Thanks for your response. So this will be more like an interactive. So I will request if someone of you just come up with question answer, and there will be a different session for question answer as well.
So first of all, before starting in today's session, I'm Shobhan Chakraborty. Like my fellow mate introduced me. Today, I'm going to, before I start about my entrepreneurship journey, I will like to put forward a few steps of the entrepreneurship. And for that, I will like to share a presentation. Yeah. So, can anyone tell me what is entrepreneurship without the Google definition? I mean, if you Google it, you will definitely get some definition from Google of entrepreneurship. Can anyone from my friends tell me what is entrepreneurship? Okay, well, no issues. So let me just start with that. Entrepreneurship is starting something of your own. It can be a business, a group, or it can be even an NGO. If you're having a business model, if you're having an idea, if you are having an idea through which you think at a very initial phase, if you are having an idea through which you think you will be able to generate certain source of revenue and you can create employment, or if it is fulfilling the social needs or whichever the things which are lacking behind, you have a solution. You come up with a solution, and we can term it as something is as entrepreneurship. The basic stuff is simple. We are the solution provider. Each and every entrepreneurs are solution providers. But the main thing is that entrepreneurship, if I just convert it into the Hindi version of entrepreneurship, we can tell it as entrepreneur. जो प्रेरणा अंदर से आता है, it's called self motivation. So today's is like I need to motivate entrepreneurs, few of the budding entrepreneurs with me. But the first parameter of entrepreneurship is that self motivation. So anyone choosing the field of entrepreneurship need to be self motivated. This was what is entrepreneurship. I came out of that. In this particular slide, we will be covering what is entrepreneurship, how to become one, why it is important in our society and also for our society, economic benefits, employment benefits, and there the segregation of organized and unorganized sector. And is really entrepreneurship is something revolutionary, or is it a reality, or just a myth? We are going to look forward into this. We will be discussing this in this particular slide. So what is entrepreneurship? Like I already told you, for example, in a room there are 100 people. Among the 100 people, 80% of the people are going to think, if for example there is a problem in the room, suppose fan काम नहीं कर रहा है room का, so among that 80% of the people will be okay with it. They will try and adjust it. Within that 80% of the people, say 40% will try and leave the room because उनको गर्मी लग रहा है, all this stuff. But the rest, for say the 20% of the people will try to think about it. What is the current scenario? And क्यों नहीं कर रहा? They will try to put on the switch, and that out of that 5% of out of the 20 people, 5 people will try to develop a solution or service. It can be a product, it can be a service for the short term basis. It will be act immediately. जल्दी से जाके कोई fan repair कर दिया, fan starts working, provide a service solution. Or someone else is going to create something or develop something which can replace fan. That is another few segment. So before, this is the basic definition of what is entrepreneurship. We see there is a problem and we don't deal with, I mean, we are not okay with it. So what we do, we don't rebel it. We create a solution which helps the society to grow. And of course, from that particular solution, we also benefit. What is our benefit? Benefit can be financial, social, or it can benefit the citizen of our country or any kind of any people globally. Here comes from this segregation. Here comes two major segregation of entrepreneurship. One are known as social entrepreneurs. Another segment are known as tech entrepreneurs. Particularly, my startup works in the tech background, so we are working with the different solutions. We provide different solutions, so that's why we are into the tech segment. But there are also numerous social entrepreneurs who look for the solution what the society is facing. For example, it can be anything like
People who, those who are unable to access to internet, a startup goes to a village, makes it a smart village. There are also social, it can be a social entrepreneurship. There are numerous entrepreneurship like that. The best part of being entrepreneur is that entrepreneur. I am repeating this because entrepreneur is very important word. So an entrepreneur might need sometimes, might we all of us are willing to be a future entrepreneur. We might need motivation sometimes. We might need a guidance mentor who will be able to guide us how to proceed. But self motivation is the first and foremost cause we need to have, because when we start, most of the people among us, surrounding us, might not believe in our dreams. We always need to work on our dreams. This is what we do at the very initial level, until and unless we are reaching to a certain phase where our dreams are becoming or converted into a commercialization stage. Before that, no one is going to 100% believe us. Yeah, they might support us. We should be very much grateful whoever supports us in our journey, but they might not give their 100% belief on us or faith on us. So we need to believe on us. Another thing what we face is that nowadays people ask, just after you complete your formal educational degree, people ask you कि तुम काम क्या करते हो? What is the package? What is the remuneration you are generating? तुम्हारा income क्या है? All this. If you're an entrepreneur, if you choose the path of entrepreneurship, initially you won't be able to make much. You will see your friends are making much. If money is the important factor in that term, I'm describing it. He will be earning, or he or she will be earning more than you. It's completely okay. You just need to tell it to them that I have a work, I'm completely working for my dreams, and it is important for me. And I'm working, the thing is that I'm not getting the salary for what I am working. I will get the salary and it will be exponential growth which I will get in future. So how to become one? The next point is how to become one. Honestly, there is no path, sure short path or predefined path where someone can tell that you do this, you will become an entrepreneur. But there are some basic rules. Among that basic rules, one is you need to think. You need to have the urge to solve a problem, or to develop something, or to innovate something new which can be commercialized, or to develop something new. If you have these basic traits in you, and another thing is that you need to be very disciplined, because no one is here to tell you that what you need to do. In office में क्या होता है कि हम जब भी काम में enter होते हैं in our office, people tell us these are the following works you need to do, 1 2 3 4 ऐसे करके आ जाता है. Our superior tell us, senior बोलते हैं कि ये करना है. In entrepreneurship you are your senior, you are might be, you started by your own, so आप बस एक ही जन है who is starting in the company. You are the CEO, you are the uh, accountant, you are the peon as well. सब आप ही हो. You need to take care of the complete business at a very initial stage. जब आपके पास कुछ आइडिया है, या आप 3 4 जन दोस्त मिलके एक चीज स्टार्ट कर रहे हैं, a few co-founders are there, so everyone is a friend, but who is going to manage your friends? आप कैसे इसको as a form of business में कैसे convert करेंगे? You need to know all this. These are all the way of becoming, from how a student becomes an entrepreneur. Let's place it this way. These are all the ways. So why is it important in our society or for our society? Let me just tell you one thing that most of us are going to know. Few of us already know this point, that India is one of the youth country globally, and the number of youth are potential working youth. Those who have the capability, education, skills to work are growing. So इसमें क्या होता है कि by the year of 22, in the year of 2022, उसमें क्या होगा कि so much of youth, skilled workers, skilled laborers, engineers, इतना youth बढ़ जाएगा. We don't have that much amount of big numbers of big companies in our country presently at the present moment. So the best way is to promote entrepreneurship
startup, and also the concept of Atmanirbhar Bharat, which is coming, which already existed from 2016, and now it's getting popular. So इससे क्या होगा कि we don't, at this scenario when we are going to like 2022 में जब हम जाएंगे, we don't need one or two companies of 500 CR or 100 CR turnover. Rather, we need 100 or 500 companies having 1 CR turnover. The reason is why the number of employability generated will be higher. This is the only reason why the government is promoting entrepreneurship so much, because entrepreneurship is the future of generating employment. इसमें सिर्फ ये नहीं है, हमारा सोसाइटी का भी बेनिफिट होगा. द बेनिफिट इज दैट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ फॉर्मल एजुकेशनल डिग्री. देयर आर न्यूमरस विलेजेस जहां पर कि अभी तक सही से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है. स्टिल वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी. स्टिल यहाँ पर होगा कि बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पर प्रॉपर कम्युनिटीज नहीं है. येट पीपल आर वहीं के जो लोकल पीपल है, दे आर ट्राइंग टू इनोवेट समथिंग. It can be even technology transfer as well. They are generating revenue from that. They are creating jobs in that particular locality. They are helping the society to grow. So ये ultimately जाके country को ही contribute करता है. And another, this is the most important thing, is that many startups innovate, or it can be a complete innovation, it can be technology transfer, it can be a minor upgradation or development, it can be in any path, but many startups innovate, and that innovation is completely new. And since that innovation is made completely in India, so the cost of it is also less. And बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करके लाने में उसका सर्विस कॉस्ट एक्सेट्रा सब कुछ बढ़ जाता है. इंडिया में होने से इट इज मच मोर अफोर्डेबल एंड गवर्नमेंट्स नीड्स आर बीन फुलफिल्ड. दिस are the needs. And economic benefits, like I already mentioned, employment benefits I already mentioned. Now comes the most important topic, is the difference between organized and unorganized sector. Organized sector, you know numerous companies name. आप कोई भी कंपनी का नाम ले सकते हैं. It can be TCS, Cognizant, any IT company, जो कि जिसका नाम आप इजीली ले सकते हैं. विप्रो हो गया, टाटा, जिंदल, ऑल दिस बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है, एमएनसीज. बट सभी कंपनीज कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे शुरू हुआ था. एवरी कंपनी, शायद उस टाइम में स्टार्टअप वाज नॉट डिफाइंड एज अ टर्म, but every company started with a cubicle having only 2 or 3 people or 4 people believing in the concept or idea that they will grow together and they will make something and they will do something for the people and for the country. मगर अभी हम अगर देखते हैं तो ऑल दिस ऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि बाहर से कंपनीज आती हैं यहाँ पर इंडिया में, जो आईटी सेक्टर्स में जैसे काम होता है, सो मैक्सिमम रेवेन्यू दे आर जनरेटिंग. रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, दे आर कीपिंग द प्रॉफिट मार्जिन, दे आर कीपिंग इट टू देमसेल्व्स. बट सिमिलरली आप अगर देखते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हो गया, जो आपके कॉलेज के बाहर जो वन वे सेलिंग पाव, चाय, टी बिस्किट जो दे रहा है, या कोई ऐसे ही मतलब कोई खाना दे रहा है, मतलब सेल कर रहा है, इज सेलिंग फूड, द स्ट्रीट वेंडर्स, सो दे आर ऑल्सो जनरेटिंग रेवेन्यू. अभी वो जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, out of that they only keep 20 to 30% profit, and rest 70% they give it, they distribute it in the chain. वो chain में, complete chain में वो distribute होता है. This is the best part. For example, if you go on a street, you will find people selling books, first copy books वो sell करते हैं, या people selling roses or flowers. So वैसे वो sell करते हैं. But आपने कभी सोचा है, बट उनको अगर आप पसंद आ गए, if they are selling a rose at 10 rupees, the particular boy is procuring that rose at 7 rupees, he is keeping a 30% margin. So 3 rupees का उनका profit हो रहा है, he is keeping a 30% margin. And sometimes if that particular boy जो आपको flower sell कर रहा है likes your face, he is going to give you a straight away discount. वो आपको 5 रुपए में भी वो रोज दे सकता है. But if you go with the same thing, try to do the same thing with an organized company, if you ask for certain discount, 5% discount देने से पहले भी they will send a mail अपने superior को
वहां से जाके रिवर्ट बैक आते आते इट माइट हैपन आपको कुछ खरीदने का इंटरेस्ट ही चला जाए. This unorganized sector contributes nearly 48% in the country's GDP. So आप अगर कुछ स्टार्टअप फॉर्म करते हैं, डोंट रन फॉर सीरीज ए इन्वेस्टर, सीरीज बी इन्वेस्टर, वैसे वैसे जल्दी जल्दी आपको चाहिए. Run, start very small, grow step by step. Start with unorganized first. Form a business. Startup आईडी निकालिए. जीएसटी नंबर बाद में भी हो सकता है. इट्स नॉट वेरी अर्जेंट. जीएसटी नंबर भी करते हैं, कोई इशू नहीं. बट सभी का एक स्टेप होता है, go step by step. Which leads me to the next point. Is entrepreneurship a reality or a myth? Most of the people I see are very excited to become an entrepreneur. Without ये होता है एक्चुअली, ये होता है बिकॉज बाहर से अगर हम देखते हैं कोई भी चीज को, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड, बट द जर्नी टू रीच दैट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन इज नॉट दैट इजी ऑलवेज. सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु सी entrepreneurship, उनको बहुत अच्छा लगता है. They want to be an entrepreneur. Immediate basis. They need success overnight. But you might get success overnight, but उसको prepare करने के लिए you need a numerous months, let's say more than a few years of discipline, dedication, hard work. वो overnight success के लिए. There are a few startups as well जो कि खुद के कोई product develop नहीं करते. What they're working on technology transfer. बाहर से कुछ प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आवर स्पेसिफिकली, मेरे बहुत सारे स्टार्टअप है. इट यूज्ड टू हैपन इन 2015 में. ये काफी सारे टाइम में होता था. बाहर से वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, अभी वहां पर सेल करते. इज जस्ट रीसेलिंग. तो मेरा ये कहने का मतलब है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर बिजनेस स्ट्रेटेजी और हाउ दे आर वर्किंग. आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपका अगर ऐसा कुछ कंसेप्ट या आइडिया है, डोंट मिक्स इट विद अ स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इनोवेशन होता है. रीसेलिंग आप करेंगे तो यू विल बी टर्म्ड एज अ रीसेलर. यू कांट टर्म इट एज अ इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर. ये सब नहीं होगा. तब जो चीज एग्जिस्ट हो रहा है बाहर, यू आर जस्ट इम्पोर्टिंग इट. यू कैन बी अ इम्पोर्टर या चैनल पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी फॉर एन ओईएम, या डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर एन ओईएम. बट यू कैन बी एन इनोवेटर. आपका अगर आपका अगर ऐसा कुछ करना है, यू विल बी एबल टू जनरेट रेवेन्यू एट एन इनिशियल फेज. आपका रेवेन्यू काफी अच्छा होगा और दूसरे 2-3 स्टार्टअप से. बट दिस इज नॉट व्हाट द स्टार्टअप वाज टर्म्ड. If you need to have an innovation, you need to have something of your own. You need to find a proper solution. Even a minor upgrade is also worth it. तब जाके आप स्टार्टअप कर पाएंगे. So this is the startup term, sometimes used. It might be a myth, but most of the time it is reality. That's why it is being promoted humongously. बहुत अच्छे से इसको प्रमोट किया जा रहा है. Now coming to the next slide. मेरा एक सवाल था आप लोगों से, सिंस आई मैं चाहूंगा कि कोई इसका someone, one of my friends can give me a response. You want to be an entrepreneur, that's why I believe you joined this session. My question is why? Can anyone tell me? Why do you want to be an entrepreneur? Can any one of you tell me why do you want to be an entrepreneur? आप बोलिए, don't think कि मैं बोलूं या मैं बोलूं. No one is telling. आप बोल दीजिए जल्दी से. Hello, sir. I'm Rahul Kumar. हाँ राहुल जी बोलिए. Think that मेरी ये सोच है कि किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना इजी है, बट सही सॉल्यूशन निकालना मुश्किल होता है. तो सोच यही है कि किसी भी जो, जैसे हम अभी ईवी सेक्टर को लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो उसका चार्जिंग जी. सॉल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं. तो उसी के लिए सोचे कुछ ना कुछ तो नॉलेज एक्वायर होगा कि किस तरह से उस पर वर्क किया जाए, इसलिए इस सेशन को ज्वाइन किए. मैं समझ पा रहा हूँ आपका टेक्नोलॉजी में समझ पा रहा हूँ, बट आप मुझे ये बोलिए, why do you want to be an entrepreneur? तो
टू रीच द सॉल्यूशंस, मतलब कि सोशल वेलफेयर के लिए? वेरी गुड, थैंक यू राहुल जी। अभी मैं इसको दो चीज, एनीवन एल्स कैन कम अप विद एनी अदर सॉल्यूशन? हेलो सर। यस मैम, बोलिए। सर अभी जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है सर, सब जन जॉब सीकर बनना चाहता है, कोई भी जॉब प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहता है। तो सर हम चाहते हैं कि मतलब कुछ ऐसा स्टार्टअप हम करें ताकि हम जॉब प्रोड्यूसर बन सकें, ना कि जॉब सीकर। बहुत बढ़िया। एंड आपका स्टार्टअप आइडिया क्या है, कुछ आपने सोचा हुआ है अभी तक? सर अभी तक तो सर प्रोसेसिंग में ही यही सोच रहे हैं सर कि क्या स्टार्ट ऐसा हो सकता है मेरे से। बहुत बढ़िया है मैम, ठीक है। और किसके पास कोई प्रॉपर आंसर है, बट व्हाई? अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ। दोजन ने द पॉइंट, दोजन ने जो कहा है, वन वाज जॉब सीकिंग। बहुत सारे हैं जो कि जॉब सीक करते हैं, एंड बहुत सारे मतलब ये इनका दूसरा जो सोल्यूशन था, ही वांटेड टू प्रोवाइड सोल्यूशन। ये दोनों जो है, दिस आर द प्रॉपर आंसर इस चीज का। बहुत लोगों का ये करना है कि दे लाइक द लाइफस्टाइल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एक दो जन एंटरप्रेन्योर को वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फॉलो करते हैं, उनको अच्छा लगता है। जब कोई सामने आके मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बोलता है कुछ, हम सभी को अच्छा लगता है। फेमस हो गया तो अच्छा लगता है, फोर्ब्स 30 मिल गया, फ्यू अवार्ड्स रिकॉग्निशन मिल गया, तो सब कुछ अच्छा लगता है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल, आई गॉट टू गुड आंसर्स एक्चुअली। अभी दोर्जन ने बोला, आप दोनों का इंटेंशन बहुत अच्छा लगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल लुक फॉर दैट ग्लॉसी थिंग। वो ग्लोरी ढूंढने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं विदाउट नोइंग द जर्नी, द हर्डल्स। तो आपके ये होना चाहिए, एक तो आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, नंबर वन। दूसरा चीज, आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड यू आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। इसमें और एक चीज ऐड करना पड़ेगा, सोल्यूशन आप प्रोवाइड कीजिए, एम्प्लॉयमेंट भी आप जनरेट कीजिए, बट अनटिल अनलेस आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, यू वोंट बी एबल टू सस्टेन। एंड इफ यू वोंट बी एबल टू सस्टेन योरसेल्फ, यू वोंट बी, आपका कोई भी जो आप जो करना चाहते हैं, यू वोंट बी एबल टू फुलफिल इट। ना आप एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट कर पाएंगे, ना ही आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे। सो आपका आइडिया जो है वो रेवेन्यू जनरेटिंग होना चाहिए, बिजनेस आइडिया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ ये जाता है, हाउ मच वी आर विलिंग टू गिव। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ वेरी इजी वे टू गो। एंटरप्रेन्योरशिप इनिशियली 2 इयर्स और 3 इयर्स में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ देना पड़ता है। ये स्टैंडर्ड है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, पर 2 to 3 इयर्स एक स्टैंडर्ड होता है जहां पर कि कुछ मिलता नहीं है, ओनली आपको देना पड़ता है। उसमें बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, बहुत सारे रिजेक्शंस होता है, सभी से रिजेक्शन मिलता रहता है। तो इसमें आप कितना रिजेक्शंस लेने के बावजूद भी आप अपने ड्रीम, अपने गोल्स पे फोकस कर पाएंगे, ये काफी मैटर करता है। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट पाथ हियर, क्योंकि हर वक्त आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होगा, क्योंकि आप अप्रोच काफी सारे जन को करेंगे, मल्टीपल पीपल यू आर गोइंग टू अप्रोच। हो सकता है कि आपका आइडिया अगर उतना फिजिबल नहीं हुआ, सो मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू डिस्कार्ड दैट आइडिया। सो सेटबैक होता है, सो वी नीड टू डील विद दैट पर्टिकुलर सेटबैक। इसीलिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो मुझे लेके जाता है, हाउ फास्ट वी कैन लर्न, एक्सेप्ट एंड एडेप्ट। एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक चीज ये होता है, वी नीड टू एक्सेप्ट इट, एडेप्ट इट, एंड लर्न फ्रॉम आवर रिजेक्शंस, आवर मिस्टेक्स, एवरीथिंग। बस मिस्टेक किया है, गलती किया है, पकड़ के उसको बैठ नहीं जाना है। अगर बैठ गया तो करियर वहां पर खत्म एंटरप्रेन्योरशिप का, फिर से कहीं पर जाके जॉब करने या जॉब ढूंढने जाना पड़ेगा। विच इज, आई एम नॉट टेलिंग इट इज बैड या इट इज गुड, वो नहीं है। क्योंकि आप जब एंटरप्रेन्योरशिप चूज करते हैं, आपका मोटिव रहता है, यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, यू वांट टू बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सक्सेसफुल होना मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत, यू बिकम अ बिलियनियर बाय 26 या बाय 30s में, कोई नो वन उतना जल्दी। हाँ, फ्यू एग्जांपल्स यू कैन गिव,
यू कैन गिव एग्जांपल्स क्योंकि वो फ्यू है, इसीलिए अगर हर कोई बनता देन इट वुड हैव बीन अ जनरलाइज्ड कांसेप्ट। आपको ग्रो करने के लिए स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होता है, एक बार में 1 to 100 ये कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है कि विद इन अ 4 सेकंड वी विल बी एबल टू अचीव 0 to 60 माइल्स, मतलब 0 to 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड। सो ये कंटिन्यूअस जर्नी होता है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे सेटबैक्स होता है, तो सेटबैक्स एंड फेलियर से वी नीड टू लर्न फ्रॉम इट। काफी मिस्टेक्स होता है इनिशियल फेज में, काफी सारे कंपनीज होता है जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव इवन फॉर 6 months, टूट जाता है। फिर से द फाउंडर्स हु आर वेरी मच डेडिकेटेड दे फॉर्म अनदर कंपनी। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप है, ऐसे फाउंडर्स है जिन्होंने 6-7 स्टार्टअप किए हैं, उसके बाद देयर 6th और 7th स्टार्टअप एक्चुअली सक्सीडेड, उससे पहले 5 स्टार्टअप डिडंट वर्क। ऐसा होता है, इट्स योर चॉइस एंड यू नीड टू एक्सेप्ट इट। उसको एक्सेप्ट करके लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, एक्सेप्ट वो क्या गलती हुआ एंड वी नीड टू अडेप्ट मार्केट नीड्स। अभी हम अगर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सपोज कि अभी ईवी में काम कर रहे हैं, अभी मेरे एक दोस्त ने बोला कि वो ईवी में काम कर रहा है, सो इफ ही इज वर्किंग विथ ईवी, तो अभी अगर वो मार्केट में ईवी में काम करता है, सो अभी ईवी का मार्केट अच्छा है, बट ईवी में मार्केट ट्रेंड भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ही नीड टू फेस अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशंस। मगर ईवी के टाइम में अगर उसको एक आइडिया है, नहीं अभी मैं बाईसाइकिल बनाऊंगा, सो दिस इज नॉट अ फिजिबल आइडिया इस टाइम में टू मैन्युफैक्चर अ बाईसाइकिल। जहां पर नहीं है वहां पर आप बाईसाइकिल बना रहे हैं, वो सही है, बट जहां पर गाड़ी है, मेट्रो सिटी में आप अगर एक बाईसाइकिल का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलते हैं, तो ऑलरेडी बाईसाइकिल सेंचुरी के ऊपर से है। आपको मॉडर्न ट्रेंड जो है उसको एडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी ईवी इज अ मॉडर्न ट्रेंड, स्मार्टफोन इज अ मॉडर्न ट्रेंड 2005 से, उसके बाद 2011 में अपग्रेडेशन हुआ, इट्स अ मॉडर्न ट्रेंड। तो आपको मॉडर्न ट्रेंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। वी ऑलवेज नीड टू फोकस ऑन व्हाट इज लैकिंग, या कहाँ पर हम उसको बेटर कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि व्हाट वी कैन मेक बेटर, ऑल्सो वी नीड टू फोकस ऑन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग इट बेटर। अगर हम सिर्फ फोकस करते हैं ऑन द टेक्नोलॉजी पार्ट में कि व्हाट वी कैन मेक बेटर, तो हाँ हम हम फैन का रिप्लेसमेंट एसी बोल सकते हैं, बट वी ऑल्सो नीड टू लुक एट दैट पर्सन हु इज गोइंग टू बी आवर एंड यूजर और कस्टमर, उनके पास एसी अफोर्ड करने का एबिलिटी है या नहीं। तो इन द मिडिल ग्राउंड में आके हमें कूलर उनको ऑफर करना पड़ेगा। गिविंग जस्ट एन एग्जांपल, क्योंकि फैन के बाद एसी इट्स अ ह्यूज लीप, उतना शायद वो अफोर्ड ना कर सके। मार्केट को देख के हमें एडेप्ट करना पड़ेगा। समटाइम्स होता है कि हमें अपना प्लान्स भी चेंज करना पड़ता है बेस्ड ऑन द मार्केट नीड्स। द नेक्स्ट थिंग लीड्स मी टू अ क्वेश्चन, आर यू हैप्पी एंड प्राउड? यहाँ पर आवर लिखा हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन जब मैं आपको बोलता हूँ ये खुद के लिए भी है, ये सेम चीज है, बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन थ्रू दिस पाथ। आर वी हैप्पी और प्राउड विद आवर अचीवमेंट्स yet? If your answer is yes, if you are happy and proud with what you have achieved, आप अचीव किए हैं। प्रोजेक्ट कंपटीशन होता है काफी सारा कॉलेज लेवल में, मैं भी उनमें बहुत सालों से पार्टिसिपेट करता हूँ। मैं 2014 से जब स्टार्ट किया था तब से मैं पार्टिसिपेट करता था, तो मुझे अच्छा लगता था। बट इफ यू आर हैप्पी और सेटिस्फाइड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप हैप्पी फील कीजिए, आप प्राउड फील कीजिए, आप अपने दोस्तों में से आपको प्रोजेक्ट आता है, आपका टेक्निकल नॉलेज अच्छा है, आप पर्टिकुलर कॉलेज में अच्छा काम कर रहे हैं, यू कैन बी हैप्पी। आपको थोड़ा बहुत प्राउड फीलिंग आता है बिकॉज इस टाइम में प्राउड फीलिंग होता है, बट once you ये achievement, someone wants to say something? Okay, so मगर if you feel like very proud or satisfied, then you won't be able to grow further. So आपका आंसर अगर इसमें yes होता है, then you won't be able to grow further. आप satisfied मत होइए with what you have done or what you have achieved. कोई भी, you can take example of anyone, जो भी सक्सेसफुल हो रहा है, कोशिश कर रहा है या हो चुका है, he is never satisfied with his achievements. He always needs more, he always targets more, and
सेटिस्फाइड नहीं होने के पीछे कारण ये भी है, वंस यू गेट सेटिस्फाइड विथ योर अचीवमेंट्स यू कैनॉट स्टे डाउन टू अर्थ. ऑलवेज कीप योर एटीट्यूड एज अ स्टूडेंट. एटीट्यूड बहुत मैटर करता है यहाँ पर हमारे लिए. जो हम देखते हैं कुछ कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स वीडियोस में कि बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बात हो रहा है मोटिवेट, दैट इज नॉट ऑलवेज नीडेड. एक हम्बल एटीट्यूड इज ऑलवेज गुड. लर्नर्स एटीट्यूड, अ स्टूडेंट एटीट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड. हमें हमेशा सीखना है, बिकॉज वी डोंट नो एवरीथिंग, नोबडी नोज एवरीथिंग. एंड नहीं जानने में भी कोई गलती नहीं है, हम जान के वापस आ सकते हैं. बट वी नीड टू कीप अ लर्नर्स एटीट्यूड. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन यू क्विट? आपका अगर आंसर होता है यस, मैं बोलूंगा प्लीज सर या मैडम आप स्टार्टअप में मत आइए. आपका अगर आंसर होता है मे बी, मैं बोलूंगा प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट. एंड आपका आंसर होता है कि नो नेवर, आई एम नेवर गोइंग टू क्विट, देन मैं ये बोलूंगा प्लीज वेलकम एंड लेट्स ट्राई करते हैं. क्या किया जाता है, क्या हर्डल्स आता है, क्या होता है, वी विल ट्राई. नाउ क्योंकि अभी तक हम 2 स्लाइड कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल थिंग. हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे थोड़ा सा कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, और लेट्स से हाउ टू स्टार्ट अवर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी. इट्स ऑल स्टार्ट्स विद एन आइडिया. मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, इट्स ऑल स्टार्ट्स विद एन आइडिया. और एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी डेफिनेटली सभी बिजनेस के पीछे एक कंसेप्ट, एक आइडिया काम करता है. आप जो भी बिजनेस देखिएगा आज, इस सभी का आइडिया कुछ साल पहले, सभी बिजनेस का इतना इतना एक्यूरेट नहीं होता जैसे आप देख रहे हैं, उतना एक्यूरेट नहीं होता. एक रफ एक व्यू रहता है, एक हम सोचते हैं कि कैसा होगा चीज, एक विजन रहता है. वी हैव अ विजन. द विजन इज जनरली अ फ्यू इयर्स बैक, पास्ट में होता है, हम सोचते हैं. और अभी अभी हम प्रेजेंट में अगर आते हैं, आप अगर अभी कुछ सोचते हैं, यू नीड टू हैव एन आइडिया टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप. अभी सभी आइडिया को तो हम अच्छे आइडिया नहीं बोल सकते, या अगर हम अच्छे आइडिया बोलते भी हैं, हमें लगता है कि एट अ वेरी इनिशियल स्टेज वी थिंक दैट व्हाटएवर वी आर थिंकिंग इज वैल्यूएबल, इज important, can generate a huge amount of revenue and we can be successful. हमें ऐसा लगता है कि wow, I have this idea and this idea is mind blowing and I'm going to generate a huge amount of money, I will be famous, this and that हो जाएगा. बट ये होता है, बट ये होता है बहुत इनिशियल फेज में, तभी तक भी हमारा वो रियलिटी चेक नहीं होता, इसीलिए इट हैपेंस. आइडिया जो होता है, आइडिया होना अच्छा है, एंड बट नॉट एवरी आइडिया इज अ गुड आइडिया, एंड नॉट ऑल गुड आइडिया इज अ बिजनेस आइडिया, एंड नॉट ऑल बिजनेस आइडिया इज अ मनी मेकिंग आइडिया. बिजनेस रन्स ऑन प्रॉफिट. आपको रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो बिजनेस रन्स ऑन ट्रस्ट. आपको कस्टमर भी जनरेट करना पड़ेगा जो कि आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे. इसीलिए आपके पास अगर कोई आइडिया होता है, वो आइडिया को आप सोचिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता दीजिए उस आइडिया के पीछे. आपने वो आइडिया सोच लिया. वंस यू आर कॉन्फिडेंट विथ योर आइडिया, देन आपके आइडिया को आप मार्केट सिनेरियो के बेसिस में उसको देखिए कि वेदर इट इज अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट आइडिया और अ सर्विस बेस्ड आइडिया. अभी वो प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड आपका जो आइडिया है, हाउ कैन यू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर आइडिया? यू नीड टू जनरेट रेवेन्यू, बिकॉज विदाउट रेवेन्यू you can't even fulfill or complete that idea and fulfill your dreams of having a startup company or venture. उसके बाद आप जब प्लॉट कर चुके हैं कि आपका एक आइडिया है जो कि काफी फिजिबल है, आप उन्हें डिस्कस कीजिए. नो वन इज गोइंग टू स्टील योर आइडिया, ऐसा होता नहीं है. इफ योर आइडिया कैन बी स्टील दैट इजीली, तब वो आइडिया आपके पहले भी बहुत लोगों ने सोचा हुआ है. और दूसरा बात एक भी है, ये भी है कि हम क्या सोचते हैं, क्या आइडिया है हमारे पास, दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट जब तक हम उसको कर नहीं पाते. इट इज ऑलवेज जो जितना जल्दी आइडिया को हम एक ही साथ, if someone of you are doing any kind of research work और research paper आप लोग कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कि parallelly बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे इंडिविजुअल रिसर्चर्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, कहीं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी एक ही साथ उसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च होता है ग्लोबली. तो आप जब फाइनली अपना पेपर कंप्लीट करके, पूरा पेपर कंप्लीट करके, पूरा मेहनत से 2-3 महीने, यू डिवोट योर 2-3 months and make a complete your best paper and you submit it,
and somehow it gets rejected by telling that someone has already submitted, did this work, exact work from say जिम्बाब्वे, आपको मालूम ही नहीं था। पेटेंट के लिए तो ये और भी ज्यादा होता है। सो सिमिलरली जब तक आपका आइडिया एग्जीक्यूट आप नहीं कर रहे हैं, वन हु एग्जीक्यूट आइडिया, एक साथ सेम टाइप ऑफ आइडिया बहुतों के पास आ सकता है। इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट विथ योर आइडिया। आपको बहुत अच्छे से थॉरोली मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। इफ यू आर हैविंग एनी प्लान्स, एनी आइडियाज, यू नीड टू डू अ मार्केट रिसर्च। जो अभी थोड़ी देर पहले मैडम ने कहा कि शी wants to generate employment, she wants to generate employability, या मेरे दोस्त ने कहा कि he wants to work with EV vehicle का charging segment में काम करना चाहते हैं। He needs to do a thorough market research, market check and to know their competitors, कि कौन कौन है उस मार्केट में। competitors का मतलब ये नहीं है कि they are enemies, no, never. Competitors can sometimes be your major business friends, even your stakeholder. कंपटीशन है इसका मतलब ये नहीं है कि कंपटीशन है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कंपटीशन हमेशा रहेगा, पहले भी था, अभी भी है, आगे और भी ज्यादा होगा। वी नीड टू कोलैबोरेट। आपको ये देखना है कि उनके पास क्या टेक्नोलॉजी उनका है, उनका टेक्नोलॉजी को आपको यू नीड टू नो मोर, यू नीड टू लर्न मोर। आफ्टर नोइंग दैट एंड लर्निंग दैट, आप उनको बोल सकते हैं कि दिस इज द पार्ट यू आर लैकिंग। अगर कंपनी डेवलप या ग्रोथ के फेज में जाना चाहती है, दे विल लिसन, दे ऑलवेज लिसन टू फिजिबल आइडियाज। काफी सारा कंपनीज विच लिसन टू इंडिविजुअल रिसर्चर्स फिजिबल आइडिया। सो व्हाट यू नीड टू डू इज आपको वो प्रॉपर चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, तब जाके बोथ ऑफ द वेंचर्स कैन कोलैबोरेट एंड वर्क टुगेदर। वो दूसरे सेगमेंट में है, बट यू नीड टू नो योर आइडिया, यू नीड टू look into that part also, whether it is a business idea or not, and if it is a business idea, how much revenue it can generate। वो हम लोग जैसे शुरू करते हैं ना, इनिशियल फेज में हम लोग एक अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वी मेक द प्रेजेंटेशन एंड वी पिच इट एज अ few millions is the TAM, we do a TAM SAM SOM मॉडल, टोटल एक्सेसिबल मार्केट, सर्विस एक्सेसिबल मार्केट, ऐसे करके TAM SAM SOM मॉडल हम बनाते हैं एंड वी हमारा फिगर कभी वो मिलियंस के नीचे नहीं जाता। सो नो नीड ऑफ मेकिंग दैट ह्यूज फिगर्स, डोंट नीड टू टेक इट ग्लोबली अभी से, बिकॉज आपको मालूम होगा कि ग्लोबली एक्सपेंड करने के लिए भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है। आपको कोई आके नहीं बोलेगा कि आपका ये अभी आइडिया मुझे अच्छा लगा, वी विल मेक इट ग्लोबल। बोलेगा भी वो, करेगा नहीं, अगर कोई बोलता भी है। सो लेट्स स्टार्ट लोकली। इफ यू आर हैविंग some idea which has the potential to generate revenue, look the needs in the local market, survey the local market, ask them what are the products available in this particular segment, know the competitors। वो बोल सकते हैं कि हाँ ये 2 कंपनीज है which are giving them, but उनका ये प्रोडक्ट इसमें, this is where they are deficienting, this is where the customers are not satisfied, so know their pros and cons। the places where they are not doing good, you make something which will not lack those points। ऐसे a few moderations, alterations, क्योंकि आपका भी आइडिया फेज में, you haven't yet developed a product, तो आप आइडिया फेज में मार्केट सर्वे करते हैं तो आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट में खर्चा कम होता है, क्योंकि आप मिस्टेक कम करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। इट्स अ सिंपल थिंग। इसके बाद है यू नो योर बिगेस्ट इन्वेस्टर। कैन एनीवन टेल मी एक बिजनेस का बिगेस्ट इन्वेस्टर कौन होता है? कोई भी मुझे बोल सकता है। कैन एनीवन? कोई भी अगर बिजनेस करता है तो सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन होता है? एनीवन? I think that our competitors who are in the same field but they need some improvement। ये इन्वेस्टर हो सकता है, डेफिनेटली इन्वेस्टर हो सकता है, बट मैं ये जानना चाहता हूँ हु इज आवर बिगेस्ट इन्वेस्टर। सबसे पहले तो आपके कंपटीटर आपको इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपके कंपटीटर। सर जो स्टार्ट कर रहा है सबसे बिगेस्ट वही इन्वेस्टर होगा सर। डेफिनेटली करेक्ट मैम। एनीवन एल्स? सभी कोई सो गए क्या? सैटरडे है, सभी कोई मतलब इवनिंग हो रहा है, विंटर का टाइम है, सभी सो गए हैं सभी कोई? Oh, yeah, okay, right. So the biggest, हाँ, sorry, बोलिए, आप कुछ बोलने वाले थे।
So the biggest investor is the person who believes in his idea or her idea and starts the business. तो हम हमेशा हमारे बिजनेस के सबसे बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, क्योंकि इनिशियली हम ही उसको उसमें इन्वेस्ट करते हैं. जब आइडिया फेज में रहता है, उससे प्रोडक्ट फेज में या रेवेन्यू जनरेशन फेज में लाने के टाइम तक वो हम हमारे ऊपर कौन इन्वेस्ट करता है, वो दूसरा सेगमेंट हो गया. यू कैन टेल आवर पेरेंट्स आर आल्सो आवर बिगेस्ट इन्वेस्टर्स, या आवर रिलेटिव्स हैविंग that financial freedom or economic stability are our biggest investors, but that are all secondary. They are not investing on our idea, they are investing on us. आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इन्वेस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दे लव यू एंड दे यू आर देयर चिल्ड्रन, इसी के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. आपके बिजनेस आइडिया के ऊपर डायरेक्टली आपके पेरेंट्स एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तब वो दे वुड हैव आस्क्ड फॉर स्टेक और कंपनी में, तो वो तो होता नहीं है. So we are the biggest investor. Ultimately, we are investing the amount in our company. We are investing our time, our efforts, our hard work, dreams, सब कुछ हम दे रहे हैं वो particular company के लिए. And after generation of मतलब after ये idea becomes a product or a service, revenue generation phase में जाता है जब ये, at that moment our biggest investor is our customers. मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था business runs on trust. So our biggest investor is our customers. Customer who trust us will invest on us. तब जाके हमें मार्केट से क्रेडिट में मिलता है, because people know that ये जो बिजनेस कर रहा है he is having a proper business model, ये genuine इंसान है, ये सही से काम कर रहा है, इसका बिजनेस भी सही है, he is delivering a genuine product or a genuine service. So then the customer is willing to invest on your business. एंड इसके बाद जाके व्हेन आवर बिजनेस ग्रोज टू अ सर्टेन फेज, जहां पर कि लगता है कि यस कंपटीशन मार्केट में हम घुस चुके हैं, तब जाके आवर कंपटीटर्स आल्सो बिकम्स आवर इन्वेस्टर. तब जाके बैंक्स बिकम्स आवर इन्वेस्टर. तब जाके जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, गवर्नमेंट, अभी बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हो चुके हैं, वो भी इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे हैं, आपके कॉलेज में भी शायद होगा. सो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है एआईसीटी एंड डीएससी इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट से. ऐसे बहुत सारे होते हैं, बट इनिशियल लेवल में आपको खुद इन्वेस्ट करना पड़ता है. उसके बाद सेकंड इन्वेस्टर होता है आपके कस्टमर, एंड आपके कस्टमर बेस के ऊपर ही डिपेंड करता है आपका बिजनेस कितना ग्रो करेगा. द नेक्स्ट थिंग इज ट्रू एसेट. हु आर योर ट्रू एसेट? द पर्सन हु अदर देन यू. आप तो कंपनी के एसेट हैं क्योंकि दिस इज योर आइडिया. Other than you, the person who believed in your idea and joined your company, it can be a co-founder, it can be a friend, it can be someone having the skill which you don't have, that's why you decided to collaborate. सपोज कीजिए किसी का टेक्निकल अच्छा होता है, किसी का मार्केटिंग अच्छा होता है, किसी का बिजनेस कॉन्टैक्ट मार्केट रीच अच्छा होता है. सो अ पर्सन हैविंग अ टेक्निकल नीड सम हेल्प ऑफ अ मार्केटियर, or the person having the ability to market well needs a technical guy to develop a product or the concept जो उसका आइडिया है उसको फॉर्मेशन देने के लिए. सो वो होता है एसेट. नेक्स्ट एसेट होता है हमारे एम्प्लॉइज, जो कंपनी में ग्रो करते हैं, जो कंपनी को ग्रोथ दिलाते हैं. दे आर द मेन रीजन जिसके कारण कंपनी हमेशा डेवलप करती है या एक्सपैंड करती है. इसके बाद या इसी के इक्वल एसेट आप कंसिडर कर सकते हैं कस्टमर. यहाँ पर आ जाता है कस्टमर लॉयल्टी. दोज हु आर रिपीट कस्टमर या ओल्ड कस्टमर, जो ये जानने के बाद भी कि आपके पास ये प्रोडक्ट 500 रुपए ज्यादा में मिल रहा है, येट आपके सर्विस एंड आपके वेलफेयर गुडविल के लिए आपके पास वो रिटर्न करते हैं बार बार. रिपीटेबिलिटी इज कॉल्ड कस्टमर लॉयल्टी. अभी बिफोर स्टार्टिंग, मतलब अभी तक मैंने जो कहा है ये दिस आर ऑल जनरलाइज. होपफुली एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे पाया. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फेज, मैं ये जानना चाहूंगा, लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन एंड आंसर राउंड. किसी को अगर कुछ भी क्वेरीज रहता है, प्लीज टेल मी, बिकॉज मैं यहाँ पर सिर्फ मेरा स्टोरी बोलूंगा. इट्स नॉट वेरी गुड. आई ऑल्सो वांट टू नो यू कि आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों का क्या इंटेंशन है, आप मतलब कैसे क्या करना चाहते हैं. आर यू रियली वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर? आर यू रियली वांट टू सेट अ स्टार्टअप, एक बिजनेस? कैसे? लेट्स हैव अ डिस्कशन. Anyone please willing to ask me anything you can regarding entrepreneurship.
किसी को कुछ पूछना है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके या किसी का कुछ भी क्वेरीज हो? सोचिए मत, पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है किसी को अगर कुछ भी पूछना है तो। अच्छा लग रहा है कि उतना किसी का कुछ क्वेरी नहीं है, ठीक है। सो so first of all, I am very much thankful to the college, to the respected teachers, dignitaries, and all of my friends who are attending this conference, this lecture session. So today was about how I started my journey. Basically, I started when I completed my school. Started on 2014. So I completed my school. I joined electrical engineering BTech. So a few of the professors were my professors at that moment of time, and I'm very honored. So मेरा ये एक था कि I used to create projects. I was very interested to developing new projects. मुझे project बनाना अच्छा लगता था. So what I used to do from 2014, I used to make various projects. वो सीनियर का भी हो सकता है, डिफरेंट प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन्स का भी हो सकता है, किसी स्कूल प्रोजेक्ट्स भी हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. आई यूज्ड टू मेक प्रोजेक्ट्स एंड व्हिच एक्चुअली लेड मी टू दिस IIM Calcutta based स्टार्टअप है, UAV मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप. वो बेसिकली हम मैन्युफैक्चर नहीं करते थे, यूज्ड टू डेवलप एंड अपग्रेड ऑन द बेस फ्रेम ऑफ द UAV. So it was at a very initial phase. We were starting at that very initial phase. So हम वहाँ पर काम करना स्टार्ट किए. And from there, the actual startup journey initiated. वहीं से हम struggle किए, हम थोड़ा सा सीखे अच्छे से कि कैसे क्या काम करना पड़ता है. We all grow together and somehow we managed to get a bit of recognition. Our major clients were defense segment and B2B segments. So after a few years, I decided I was more interested in manufacturing things than to rather import them from abroad to a minor upgradation or integration and to sell it in the market for the revenue generation. So my motto was to develop. जो मेक इन इंडिया अभी हम सुन रहे हैं, ये एक्चुअली 2016 का कंसेप्ट था. 2014 एंड से चालू हुआ था, 2016 से इट वाज प्रमोटेड वेल. सो मेरा वो कंसेप्ट था टू मैन्युफैक्चर एंड डेवलप समथिंग एंड सेल इट टू द, it can be in government, it can be B2B, it can be in B2C segment as well. So that's why we formed another venture which was solely focused on manufacturing various products. We were majorly focusing on surveillance equipments, and we formed our venture in 2018 named Meg Robotics. So this particular company is solely not, we cannot solely term it as a startup because we didn't started it without knowing anything, because हमारे पहले से ही market connects था. We were already working with various different segments, various government sectors, and so हमारे client base ready था. So what we were manufacturing is we were developing something जो कि market में नहीं था, which the market was lacking. So then we developed a few products. जैसे कि ये ड्रोन्स आपको ने काफी सारे देखे होंगे, स्पेशली एग्रीकल्चरल ड्रोन एंड पहले वाला जो ड्रोन है NPNT कंप्लायंट ETA वाला, वो वाला ड्रोन तो एग्रीकल्चर ड्रोन इज प्रीटी कॉमन राइट नाउ. अभी सभी कोई बना सकते हैं एग्रीकल्चरल ड्रोन. सो हमारा वाला जो ड्रोन का USP था, इट इज फर्स्ट वाज heavy payload carrying capacity, जो कि अभी तक इंडिया में नहीं है, एंड द सेकंड इज द फ्लाइट टाइम विद द heavy payload carrying 70 minutes. सो ये अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक रिक्वायरमेंट था, मतलब हमारे एंड यूजर्स का एक रिक्वायरमेंट था, इज ऑफ
a fixed wing which will be able to fly at a distance of around 35 to 40 kilometers or even more for surveillance purpose. तो वो हमने मैन्युफैक्चर किया एंड द लास्ट व्हाट वी रिसेंटली मैन्युफैक्चर एंड ये अभी भी अंडर टेस्टिंग प्रोसेस में है. इट इज दिस इंडिजिनियसली डेवलप्ड काउंटर यूएवी सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन पर्पस, सर्वेलेंस पर्पस. इसमें कोई भी आरएफ फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट कर सकते हैं. वी कैन डीएक्टिवेट दैट थिंग. Along with this, we are having this service segment. Service segment में हम different kinds of mapping करते हैं using UAV. इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि different types of mapping का काम हमने किया हुआ है. These are the also it includes drone delivery system. Drone delivery system अभी तक executed नहीं हुआ है. थोड़ा सा काम हमने चालू किया हुआ था इसका. ये अभी कुछ गवर्नमेंट लीगल प्रोसेस है, उसके थ्रू जाके 2022 या 21 दिसंबर तक ये हो जाएगा. And this is our team. Like I said, team is always an asset. So ये हमारे core team है. We are working together. A few of us are working together from 2016, 2015, and a few of us are working together from 2018. So this was our basic journey, what we have done so far. Apart from that हम अभी जहाँ पर हम काम करते हैं, it is basically अभी पटना में है और मेघालय में भी है. We are also focusing on that local development phase, जहाँ पर कि हम वहाँ पर साइंस के ऊपर अवेयरनेस कर सकें, जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है उनके साथ मिलकर काम कर सकें. क्योंकि हमारा ये वाला सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बेस में है. वी आर नॉट रीसेलिंग एनी प्रोडक्ट्स. वी आर मैन्युफैक्चरिंग और लेट्स से डेवलपिंग एंड देन वी आर सेलिंग इट. और हमारे जो क्लाइंट्स है वो ओनली गवर्नमेंट है एज ऑफ नाउ. दैट्स वाई उसीलिए हमें उतना मार्केटिंग का जरूरत भी नहीं पड़ता एंड उतना पॉपुलरिटी वैसे हमारा अभी फिलहाल टारगेट नहीं. वो हमारा दूसरा सेगमेंट है, फ्लाईकास्ट के. You will be able to have a conversation with that person as well in the next session. So this is about me. And अभी मैं चाहूंगा कि किसी का भी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज मुझे पूछिए कि कैसे हम काम कर सकते हैं. थैंक यू. All the participants, if anyone has any query, you can ask to the sir. हेलो. Yeah. यस. जैसा कि आपने बोला कि हम लोग का फर्स्ट इन्वेस्टर हम लोग खुद होते हैं, बट अगर हम लोग को का जो प्रोजेक्ट है या जो भी मार्केट है, जैसे मेरा चार्जिंग का है, तो उसमें तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है. मतलब चार्जिंग स्टेशन अगर एक सिंगल स्टेशन भी सेटअप करना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है. तो फिर कैसे ही ये पॉसिबल है कि हम लोग खुद ही अकेले इन्वेस्टमेंट करके और उसमें सक्सीड करें, फर्स्ट स्टेज पे लाए? देखिए, इसका एक बेसिक कंसेप्ट ये है कि आप काफी सारे इन्वेस्टर्स के पास जाके आप आइडिया पिच कर सकते हैं. बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जहां पर आप जाके आइडिया पिच कर सकते हैं. जनरली सभी स्टार्टअप इनिशियल फेज में यही करती है. सो आप जब इस डिफरेंट इन्वेस्टर्स के पास जाके आप अपना आइडिया पिच करते हैं, सो वहां से आपको एक ही चीज पूछता है, क्या ये सिर्फ एक आइडिया है और इज इट. बहुत सारे आपको चीज पूछेंगे वहां पर. आपको कंप्लीट बिजनेस प्रपोजल, बिजनेस प्लान, ये सब कुछ बहुत कुछ देना पड़ेगा. मगर एक चीज वो पूछते हैं कि इज दिस ओनली अ आइडिया, और क्या आप इसमें प्रोटोटाइप बना सकते हैं या प्रोटोटाइप बना के उनको दिखा सकते हैं. इज योर प्रोटोटाइप रेडी. तो आपका क्या ये सिर्फ, मैं भी उनकी तरह एक ही चीज पूछ रहा हूँ, क्या आपका ये सिर्फ आइडिया है या आपने ऑलरेडी इसके ऊपर कुछ काम चालू किया हुआ है. सर काम चालू किए हुए हैं. एक्चुअली हम कनेक्टेड चार्जिंग स्टेशन के बारे में सोच रहे, जो कि अभी अवेलेबल है. एक्चुअली में देखा जाए तो टाटा ने जेड कनेक्ट के थ्रू इसको पॉसिबल किया है, बट लोकली अवेलेबल नहीं है. मतलब कि अगर कोई सिंगल, जैसे अभी जनरलाइज्ड टोटोज चल रहा है, मतलब रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा, जी. तो सर उन लोग के पास अवेलेबल नहीं है. टाटा सिर्फ उन्हीं लोग को देती है जो कंपनी से कार खरीद रहे हैं या ईवी खरीद रहे हैं उस कंपनी का, उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइडेड है. मगर मेरा ये प्लान है कि हम जो सर्विस देंगे वो सबके लिए, मतलब कोई भी आए, किसी को भी अगर चार्जिंग का फैसिलिटी चाहिए तो वो सिंपल हम लोग का एप्लीकेशन का पे करे या फिर जो कार्ड है उसके लिए पे करे और सर्विस को अपना यूटिलाइज करे. तो इसके थ्रू है. तो इसमें जो
मेन स्ट्रक्चर है उसको प्रोटोटाइप बोलिए या फिर डिजाइन बोलिए, एक्चुअली डिजाइन तैयार किए हैं और प्रोटोटाइप मतलब तो वैसा कोई प्रोटोटाइप है नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर है, ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट ही लगेगा, बट डिजाइन स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अच्छा, आपने किस पे डिजाइन रेडी किया हुआ है, तैयार किया हुआ है? अभी तो सर पेन पेपर पे डिजाइन तैयार है और एप्लीकेशन पे काम चल रहा है। वेबसाइट तैयार किए थे जो कि मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट चल रहा है उसका। कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए, वेबसाइट से पहले आप अपना प्रोडक्ट डेवलप कीजिए, मैं आपको ये कहूँगा। क्या क्या है कि हम सभी को यहीं पर एक चीज गलत गलत कह बैठते हैं। गलत इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये टर्म इसीलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज मैक्सिमम सभी, आप जितना भी स्टार्टअप दिखिएगा कि जिनका एक्चुअली में बिजनेस नहीं है, उनका एक बहुत बढ़िया वेबसाइट है। क्योंकि स्टार्टअप का मतलब ये नहीं है कि आप सबसे पहले एक सुंदर सा वेबसाइट बना लें। स्टार्टअप का मतलब है कि आपको सही से एक चीज बनाना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपका वो मार्केट रीच होगा, तब जाके आपका वेबसाइट होगा। आप अभी आप देखिए कि कोई भी अच्छा मतलब जो गवर्नमेंट R&D बेस्ड काम करती है, गवर्नमेंट R&D वाला ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका की स्टैटिक वेबसाइट होता है या वेबसाइट होता भी नहीं है, नहीं भी होता है। तो क्या वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती? मैं आपको बोल रहा हूँ। या क्या वो कंपनी गलत है? हम जब सपोज कीजिए कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहते हैं, हम कोई भी कंपनी को अच्छे से स्टडी करते हैं ओनली बेस्ड ऑन देयर वेबसाइट, जो कि जरूरी भी है वेबसाइट रहना सभी कंपनी के लिए, जो कि जरूरी भी है। मगर सिर्फ वेबसाइट इज नॉट द ओनली थिंग कि जिसके ऊपर आप एक कंपनी को स्टडी करें। तो आप अभी वेबसाइट अपने इन्वेस्टर को जाके वेबसाइट दिखाएंगे, आपकी इन्वेस्टर देखेंगे। हाँ ओके बोलिए। ओके ओके, यू टेक इट इन अ रॉन्ग वे। जैसे मेरा जो भी है सर्विस, वो सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर है, मतलब कि हार्डवेयर तो जो अच्छा अच्छा, आप चार्जिंग वेबसाइट डेवलपमेंट भी कर रहे और हैं। सॉफ्टवेयर जो है सो कनेक्ट है, मतलब कि अब अगर किसी को कुछ बुकिंग करना है, जैसे जनरल कार का जैसे होता है आजकल, पार्किंग का बुकिंग होता है, प्री बुकिंग पार्क एरिया अच्छा। का, उसी टाइप से अगर मान लीजिए, जैसे क्योंकि चार्जिंग में मिनिमम टाइम 30 मिनट्स लगता है, हाफ एन आवर हम्म, 1 आवर अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी। तो उसके लिए तो पहले प्री बुकिंग चाहिए, या कहाँ पे कौन सा चार्जिंग स्टेशन पे स्लॉट खाली है, उसके लिए जो स्ट्रक्चर है उसको तैयार किया है। मतलब अभी एप्लीकेशन को छोड़ के हम लोग ऑनलाइन वेबसाइट अच्छा के थ्रू अच्छा। काम को शुरू करने के लिए ट्राई किए थे, मतलब एक बार फेल हुए हैं, सेकेंड अटेम्प्ट चल रहा है उस पर। सेकेंड तो अटेम्प्ट में आप कर लीजिएगा। आप एक बार एक काम कर सकते हैं, टेस्ला एंड किया मोटर्स, ये दोनों का जो वेबसाइट पोर्टल है वो आप चेक कर सकते हैं फॉर ईवी व्हीकल। आप एक VPN यूज कीजिएगा। VPN आपको मालूम होगा शायद, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आप yes, VPN यूज करके उसमें आप यूरोप बेसिस में जाके लॉग इन कर सकते हैं। यूरोप बेसिस में जाके लॉग इन करके आप टेस्ला एंड किया मोटर्स का वेबसाइट चेक कीजिए। वहां पर आपको मालूम चल जाएगा कि उनका ये जो चार्जिंग स्टेशन बेसिस में जो वेबसाइट में काम चलता है वो कैसा होता है। आप अगर अपने सॉफ्टवेयर पार्ट को रेडी करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि हार्डवेयर से पहले आप अपने सॉफ्टवेयर का क्लाइंट मिल जाए आपको। एग्जिस्टिंग हार्डवेयर जो कंपनी है, क्या है कि हार्डवेयर आपको मालूम है इट नीड्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, हमेशा हार्डवेयर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, एंड हार्डवेयर का प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है कंपेरेटिवली टू सॉफ्टवेयर। yes, आप अगर इस प्रोजेक्ट को दो टाइप में अगर सेग्रीगेट करते हैं, ये काफी अर्ली स्टेज है क्योंकि हार्डवेयर बेसिस में ये काफी अर्ली स्टेज है। आप अगर इसको दो सेगमेंट में सेग्रीगेट करते हैं, एक सॉफ्टवेयर को आप अलग कर दीजिए, मतलब सॉफ्टवेयर का काम अलग कर कीजिए, ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आप सेम प्रोजेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो कि आप शायद कर भी रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है उसको आप सेपरेटली फोकस करके पहले डिवाइड मतलब उसको डेवलप कीजिए। आप वो जाके आप दिखा सकते हैं, जो कि आप कहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। टेस्ला का जो ईवी चार्जिंग होता है यूरोप में काफी है, एंड किया मोटर्स का, ये दोनों में आप चेक कर सकते हैं अच्छे से ईवी के लिए। और मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि ईवी हार्डवेयर का जो सेगमेंट है, यहाँ पर इंडिया में ऑलरेडी टोटल 19 कंपनीज काम कर रही है, 19 स्टार्टअप। उससे ज्यादा भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, मगर 19 स्टार्टअप, जब लास्ट टाइम हम एक ईवी समिट पे गए थे, वहां पर टोटल 19 ऐसे होता है ना जो हम डिस्प्ले के लिए करते हैं, वैसे टोटल 19 है। yes, उसमें से अभी जो आपने जो जेस्ट बोला, टाटा का जो है, वो एक्चुअली yes, एक्वायरमेंट ऑफ 2 स्टार्टअप कंपनीज है वहां पर। टाटा का एक इनोवेशन लैब है, आपको मालूम पड़ेगा।
आप यस टीसीएस का नाम सुने हैं, तो टीसीएस का भी एक इनोवेशन लैब है, आप चेक भी कर सकते हैं, टीसीएस इनोवेशन लैब्स। तो टाटा का है वो भी। तो वो भी एक्योरमेंट ऑफ 2 स्टार्टअप कंपनी का है। तो ईवी पे अभी बहुत सारे R&D चल रहा है, काम चल रहा है। तो मुझे आपसे डिटेल्स में जान के ये जानना है कि आपका जो स्टेज है वो कौन से स्टेज में है। क्योंकि आपने कहा कि पेन एंड पेपर में है, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर बेसिस में करते हैं, मैटलैब वगैरह में आप करके मुझे बोलते हैं, तभी भी मैं। आप कौन से ईयर में पढ़ रहे हैं अभी? सर 3rd ईयर एंड कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल 3rd ईयर है, आपने अभी तक मैटलैब स्टार्ट किया? कंट्रोल तो आ गया होगा आपका। यस सर। हाँ, तो आपने मैटलैब स्टार्ट मैटलैब किया यस सर किए हैं सर। किया है, मगर वो वाला बेसिक जो कोर्स बेसिस में हमें दिखाता है, यहाँ से बल्ब लाके सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा, वैसे से नहीं हो पाएगा। आपको एडवांस कोर्सेज करने पड़ेंगे मैटलैब के, तब जाके आपने जो पेन एंड पेपर में बनाया हुआ है उसमें जाके आप कंप्लीट कर पाएंगे। एंड मैटलैब में अगर ये सक्सेस होता है, तब उसका रिजल्ट जब आप दे पाएंगे, तब वो फिजिबल होगा। देखिए सर जी, यही प्रॉब्लम होता है यहाँ पर कि हमारा जो कोर्स डिविजन है, बीटेक में आपको उतना नहीं सिखाएगा। ये आपका मैटलैब का जो डिटेल्स होता है वो एमटेक में होता है। एमटेक में जाके सिखाते हैं। बीटेक में जो हमारा जो कोर्स का है मैटलैब का, सभी जगह पर ये इंडिया में जो हम जहां से भी करें, सेम चीज ही है। तो उतना आपको एक्सपर्टीज नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अच्छा ये रहेगा कि आप आपका जरूरत के अनुसार आप एडवांस कुछ लर्निंग आप कर लीजिए मैटलैब का, आप अगर खुद से करना चाहते हैं तो इसको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सॉफ्टवेयर बेसिस में ज्यादा फोकस कीजिए, तो उसको अटेंड करना इजी रहेगा, सॉफ्टवेयर पार्ट। ओके सर, थैंक यू सर। क्या है कि आपका फंडिंग मिल जाएगा। आप इन्वेस्टर यस को अगर सॉफ्टवेयर पिच करते हैं, तो एटलीस्ट आपको फंडिंग मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए ज्यादा मैन पावर भी नहीं लगता, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता। सॉफ्टवेयर कंप्लीट करेंगे, सॉफ्टवेयर दिखाएंगे, इन्वेस्टर इंटरेस्टेड हो जाएगा, बोलेगा कि इसने 3rd ईयर का स्टूडेंट है, अब शायद 4th ईयर में जाके सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। 4th ईयर का स्टूडेंट है, ये बीटेक कंप्लीट किया हुआ है, ये सही सही है, सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करते हैं इनको। हम सॉफ्टवेयर, हो सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर अगर अच्छा हुआ, जेस्ट को ही हम सॉफ्टवेयर सेल कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, टाटा को। यस, थैंक यू सर। वेलकम, बाय। अभी और किसी का कोई क्वेरीज है? एनी क्वेरीज? किसी को स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शायद है, या नहीं समझ में नहीं आ रहा है मतलब आपका कोई कुछ तो प्लान होगा स्टार्टअप में बिजनेस करने का। सर हाँ जी, हेलो बोलिए। सर, हाँ, आपका बोलिए। स्टार्टअप का आइडिया कैसे क्रिएट हुआ? स्टार्टअप का आइडिया? मतलब सबसे मेन तो हम लोग के पास आइडिया ही क्रिएट नहीं हो पाता है ना, क्योंकि हम लोग मतलब बहुत सारे चीज में हम लोग बोल सकते हैं इसमें भी हम लोग कर सकते हैं, ये चीज भी कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर क्या इस सेक्टर में कैसे आप सोचे कि नहीं इस पे ना आगे तक जा सकते हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं था कि मैं इसमें आगे तक जा पाऊंगा, मैं सही बोल रहा हूँ। ना ही मुझे ये आइडिया पहले आया था। मैं स्टार्टअप में घुसूंगा, मुझे इसका भी कोई मालूम नहीं था 2014 में, क्योंकि बस मैं कॉलेज स्कूल कंप्लीट करके इंजीनियरिंग में घुसा हूँ आप लोगों की तरह। तो अभी तो मुझे हमेशा कुछ बनाने का, डेवलप करने का मन था, तो इसलिए मैं प्रोजेक्ट बनाता था। एंड एक दूसरा डीआरडीओ का एक प्रोजेक्ट आया था, डायक के एक फॉर्म होता है, उसका प्रोजेक्ट आया था, उसी बेसिस में हमने काम किया था। तो उसी प्रोजेक्ट के थ्रू मुझे ये स्टार्टअप में घुसने का मौका मिला। वहां पर स्टार्टअप में घुसने के बाद, कोर टीम में जाने के बाद मैंने काम सीखा, तो मुझे लगा कि मुझे भी स्टार्टअप में इंटरेस्ट है, बहुत बहुत एक्साइटिंग चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है, तो मुझे भी करना है। एंड लकीली जिस स्टार्टअप में मैंने काम चालू किया, सीखना सब कुछ चालू किया, तो वो वाला था यूएवी सेगमेंट का।
एंड मुझे कुछ चीजें डेवलप करना हमेशा अच्छा लगता है। सो इसीलिए यूएवी सेगमेंट में ही और फर्दर R&D के लिए हम कोशिश करते गए एंड वैसे करके हम यूएवी सेगमेंट में आ गए। आप किसी भी सेगमेंट पकड़िए, बस वही सेगमेंट में रहिए, बार बार डेविएट मत कीजिए, यही बोलना है। क्योंकि आप सभी जगह पर डेविएट करेंगे तो यू कैन नॉट बी मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, वैसे हो नहीं सकता। यू कैन ओनली मास्टर अ सिंगल ट्रेड। आपको एक स्पेसिफिक जॉनर में ही जाना पड़ेगा जिसको आप करके वैसे ले सकते हैं। सिंपल है सर, सिंपल तो अभी लग रहा है, तब नहीं था, आप भी समझ जाएंगे धीरे धीरे। सो रैप अप करते हैं आज के लिए। किसी को कुछ पूछना है और एनी क्वेरीज? If anyone has any query, you can ask. If not, then we will wrap up this session now. But I think question नहीं है. So let's call it off for the day. Okay, sir. Okay. Thank you Wish all. every Thank you all the participants for joining in this session, and thank you so much, sir, for sharing your valuable thoughts. And now I am ending this session. Okay, sir. sure. कोई भी किसी को भी if anyone has any queries, you can definitely connect with the concerned person, and sir आप मुझे forward कर सकते हैं if anyone is having any kind of queries. Sure, Okay. sure. Sir. Okay. Thank you. Thank you all. Thank you. Bye.